Good morning, students. Myself, Abhimanyu Rai Sharma, Associate Professor, Chaudhary Devilal College of Pharmacy. Today, we are going to start our next topic, that is prescription. Prescription. Prescription, as you all have seen, the doctor writes a prescription, and when we take this prescription to the pharmacist, who gives us medication according to that prescription. The doctor notes every bit of information that is required from the patient, writes it on the prescription table, diagnoses your medical condition, and gives you medication accordingly. It is all done on a prescription. तो क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे को प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जो है वो पेशेंट के लिए लिखता है। उसके ऊपर पेशेंट की सारी मेडिकल कंडीशन लिखी जाती है। मेडिकल कंडीशन लिखने के बाद क्या उसको प्रॉब्लम है वो डायग्नोज करके, चाहे कोई टेस्ट परफॉर्म किए जाए, चाहे जो मर्जी करके वो डायग्नोज करता है और डायग्नोसिस के हिसाब से वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऑल दैट द मेडिकेशन दैट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इज रिटन ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट्स हैं। यू ऑल मस्ट हैव सीन RX written on it. You must all have seen BD written, OD written, all these things which are written all have some meanings. So what are those meanings? What is a prescription? What are its parts? How we have to see a prescription? How a pharmacist should handle a prescription? All is given in this chapter, prescription. Objectives. Understand what makes a prescription. हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रिस्क्रिप्शन हमारी जो बनती है वो किस किस चीज़ों को देख के बनती है। इंट्रोडक्शन टू लेटिन एब्रिवेशंस। इंट्रोडक्शन टू लेटिन एब्रिवेशन मीन्स जैसे कुछ टर्म्स आपने देखे होंगे, दोज आर लेटिन वर्ड्स, जैसे OD, BD। BD मीन्स बिसिंडाई। बिसिंडाई इज रिटन is given by BID, which tells us bisindae. Bisindae means you have to take the medication twice a day. And there are n number of Latin terms which we have to keep in notice, और उसके हिसाब से हम मेडिकेशन देनी है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के। अगर हम लेटिन टर्म्स को नहीं जानेंगे तो हम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ नहीं पाएंगे। सो इट एज अ फार्मासिस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल शुड नो व्हाट अ लेटिन टर्म मीन्स, व्हाट इज इट्स मीनिंग, व्हाट इज इट्स शॉर्ट फॉर्म। Introduction to DEA, Drug Enforcement Administration. It is a body which tells us how a drugs should be prescribed to the patients. Practice writing the prescription, how prescription has to be written, how we have to read it, that all has to be studied in this prescription chapter. What is a prescription? A prescription order is given, written for diagnosis, prevention or treatment of specific patient's disease. As I have already told you, prescription क्या है? एक written order है, diagnosis होगी उसके अंदर, उसका treatment होगा, उसके अंदर preventions क्या क्या हमने करनी है, ये सारा कुछ लिखा होगा हमारी prescription के अंदर. It is written by a licensed practitioner. It is written as a part of proper physician-patient relationship. तो जब प्रॉपरली ध्यान से एक फिजिशियन जो है वो पेशेंट को ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, प्राइमा फेशिया एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आप इसको लॉ कोर्ट में पेश कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। प्राइमा फेशिया केस इज अ लॉ सूट दैट एलिजेस फैक्ट्स टू एडिक्वेट टू प्रूव द अंडरलाइंग कंडक्ट supporting the cause of action and thereby prevail. So anything prima facie means that is applicable in the court of law. तो आप इतनी लीगल डॉक्यूमेंट है कि आप उसको कोर्ट में शो कर सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज। The word prescription can be decomposed into pre and script, and it literally means to write before a drug can be prepared. Another theory exists that RX may originally be PX, where P is a short form of pre and X is a short form of script. तो क्या है बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री एंड स्क्रिप्ट. प्री एंड स्क्रिप्ट मीन्स टू राइट बिफोर, जब भी दवाई देनी है उससे पहले लिख के हमारे को चीज दी जाएगी. दैट मीन्स वी हैव टू गिव द मेडिकेशन आफ्टर राइटिंग, समवन राइट्स इट एंड देन वी हैव टू प्रिस्क्राइब इट, गिव इट. Another theory exists that RX may have originally been PX, which means P जो होगा उसके अंदर वो प्री होगा और X जो है वो शॉर्ट फॉर्म होगी स्क्रिप्ट की. So it is thought that कि RX जो था वो basically PX था, जो which has been converted into RX. Parts of a prescription. You all must have seen a prescription. Prescription के अंदर आपने देखा होगा सबसे पहले पेशेंट इन्फॉर्मेशन, फिर कुछ टर्म्स हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी, देखी जरूर होंगी, सुनी नहीं होंगी.
सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के बाद सिग्ना, डेटा, डेट, signature line, signatures, degree, all these things have to be written in a prescription. If not all, few things which can be deleted, but all other things have to be there in a prescription. First, patient information means उसका नाम, उसका एड्रेस, एज, वेट, टाइम, यूज, टाइम मीन्स कि कब वो मेडिकेशन उसको दी गई है, किस समय उसको दवाई दी गई है, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा होना चाहिए. सुपरस्क्रिप्शन इज द टर्म RX. RX जो आपका सिंबल है, इट इज अ ट्रेडिशनल सिंबल जब हम प्रिस्क्रिप्शन से पहले देते हैं. और इसका लिटरली मतलब क्या है? RX का मतलब है प्लीज टेक, टू टेक, यू हैव टू राइट RX. लोग previously people used to say that it is a symbol of the god of medicine, but actually it is not a symbol of god of medicine. It is written the Latin term. It is a Latin term of RX, which means please take or to take. Prescription. What is the pharmacist to take off the shelf? क्या क्या हमने उसमें उसको देना है? ड्रग का नाम, ड्रग नेम, डोज, कितनी डोज में आपने उसको देना है, डोजेज फॉर्म. अब कई दवाइयां आपने देखा होगा टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं, सिरप फॉर्म में भी आते हैं, पेरेंटल फॉर्म में भी आते हैं. तो वो आपको किस तरह से देनी है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए. सिंपल है, कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन है. सिंपल प्रिस्क्रिप्शन मीन्स एक चीज, कंपाउंड मीन्स ज्यादा चीजें. मैन्युफैक्चर्ड है, कंपाउंडेड है. मैन्युफैक्चर्ड ऑलरेडी, यहाँ आपने खुद कंपाउंड करके उसको देना है. तो क्लैरिटी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए. जैसे अब 0.2, 20 और 2.0. अब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 2 लिख दें, तो वो 2 में 0.2 है, 20 है, 2.0 है. क्या होना चाहिए? तो आपको लिखना कैसे है? जीरोज लीड बट डू नॉट फॉलो. मीन्स जीरोज आप पहले लिख सकते हैं बट फॉलो नहीं करवाना आपने. जैसे अब 20 है, वो 2.0 अगर लिख दिया है तो कोई गलती से उसको 20 पढ़ सकता है. तो जीरोज आपने पहले देनी है, बाद में नहीं देनी. सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज द फार्मासिस्ट टू डू विद द इंग्रेडिएंट्स? क्वांटिटी कितनी है इंग्रेडिएंट्स की? ये फर्स्टली क्या होता था, पहले क्या होता था, आपको दवाइयों को जब देना होता था, किसी को दवाई देनी होती थी, तो उसमें क्या होता था, क्वांटिटीज उनकी मेंशन्ड होती थी. इतनी क्वांटिटी इस चीज़ की, इतनी क्वांटिटी उस चीज़ की, और फिर आपने उसको मिक्स करके उनको पेशेंट को देना होता था. तो एट दैट टाइम क्वांटिटी सुपर वॉज अ पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन की. कितने इंग्रेडिएंट है, कितनी क्वांटिटी में है, ये सारा कुछ आपको देखना होता था. क्वांटिटी ऑफ टू बी डिस्पेंस्ड. उसके बाद फॉर कंट्रोल रिलीज राइट द नंबर्स. अब कंट्रोल रिलीज आपने देना है तो उसका नंबर लिखना पड़ेगा कि कितना टाइम के लिए आपको वो दवाई देनी है. 24 आवर्स के लिए देनी है, 16 आवर्स के लिए देनी है, 8 आवर्स के लिए देनी है, 12 आवर्स के लिए देनी है. और कोई अगर स्पेशल कंपाउंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको उसको टैप करना है, पहले आपको उसको पंच करना है, किस तरह से आपको वो देनी है, ये सारा कुछ आपको सब्सक्रिप्शन का पार्ट था. नेक्स्ट पार्ट इज सिग्ना, सिग्नेचरा और ट्रांसक्रिप्शन पार्ट. सिग्ना मीन्स टू राइट और लेट इट बी लेबल्ड. इसमें क्या है, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं पेशेंट्स को कि कैसे वो फार्मासिस्ट को कि कैसे उसको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि कौन सी दवाई किस रूट से लेनी है, कितनी बार लेनी है, कैसे कैसे लेनी है, किस चीज़ के साथ लेनी है, डायरेक्शंस क्या है, ये सारा हम उसको बताते हैं एज अ फार्मासिस्ट. इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट्स इंक्लूड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको ये दवाई जो है वो ओरली लेनी है, नेजल रूट से लेनी है, रेक्टल रूट से लेनी है. टू बी टेकन बाय माउथ, आप उसको च्यू करना है, आपको उसको डायरेक्टली स्वेलो करना है होल को, किस तरह से आपको लेनी है, दैट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नंबर ऑफ डोजेज, एक दवाई लेनी है, एक टेबल स्पून लेना है, 2 टेबल स्पून लेना है, क्या किस तरह से लेनी है. फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, 6 घंटे बाद लेनी है, दिन में एक बार लेनी है. ड्यूरेशन ऑफ डोजिंग, 7 दिन के लिए लेनी है, 5 दिन के लिए लेनी है, 3 दिन के लिए लेनी है, कितने दिन के लिए लेनी है. या आपको जब पेन हो रहा है, SOS बोलते हैं, सेव आवर सोल, जब आपको पेन हो रहा है उसी समय आपको वो दवाई लेनी है या नहीं लेनी है. पर्पस ऑफ मेडिकेशन, पेन के लिए है ये, आपको हार्ट के लिए है, अस्थमा के लिए है, किस बीमारी के लिए आपकी ये दवाई दी गई है. डू नॉट यूज एज डायरेक्टेड, जो उसके ऊपर डायरेक्शंस दी गई हैं उसका ध्यान रखना है कि वो किस तरह से दवाई लेनी है या नहीं लेनी है. स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, जैसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, धूप में नहीं रखना, शेक करना है आपने उसको यूज करने से पहले, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं. वार्निंग्स,
बच्चों से इसको दूर रखना है, ये सारी चीज़ों को आपको पेशेंट को बताना है। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रिफिल्स एंड डेट प्रिस्क्राइब्ड। रिफिल्स मीन्स कि आपको कितने दिन बाद दोबारा आना है, कितने दिन की आपकी थेरेपी चलेगी। मान लीजिए आपने 7 दिन बाद आना है, डॉक्टर आपको फिर वो रिफिल कर देता है कि आपको 7 दिन और ये दवाई कंटिन्यू रखनी है। ये सारा कुछ रिफिल का पार्ट है। इट इंडिकेट्स आइदर नो रिफिल और द नंबर ऑफ रिफिल्स यू वांट। इट शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। आप उसको खाली रखेंगे तो पेशेंट की टेंडेंसी, डॉक्टर अगर उसको खाली छोड़ देता है तो पेशेंट की टेंडेंसी है कि कोई ऐसी दवाई है जो नशे के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है, उसको वो n नंबर ऑफ टाइम्स लिख दे और वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाके फार्मासिस्ट से कभी भी वो दवाई ले सकता है। डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन उसके अंदर लिखी जाती है। डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कितने दिन तक आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो वैलिड है। ऑल प्रिस्क्रिप्शंस एक्सपायर आफ्टर 1 year। शेड्यूल 2 ड्रग्स कैन ओनली बी डिस्पेंस्ड विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ द सुपरस्क्रिप्शन। और ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर्स, एंटीबायोटिक्स जैसे 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाने चाहिए, और कंट्रोल सब्सटेंसेस 3 दिन के अंदर अपने आप स्टॉप हो जाने चाहिए। तो फार्मासिस्ट को ध्यान रखना है कि जिस दिन दवाई दी गई है उसके बाद वो रिफिल के लिए, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट बार बार वही दवाई वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है और आप उसको दवाई उस पुरानी प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिए जा रहे हैं। अगर वो कोई ऐसी दवाई बार बार मांग रहा है तो आपको ध्यान रखना है और नहीं देनी है वो दवाई। अंडरस्टूड। सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। अब क्या है, प्रिस्क्राइबर अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है तो उसके सिग्नेचर के बगैर आप किसी को भी दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर साइन नहीं करता तब तक इट इज नॉट टेकन एज अ लीगल थिंग और लीगल डॉक्यूमेंट। दिस मेक्स द प्रिस्क्रिप्शन अ लीगल डॉक्यूमेंट। इट इंक्लूड्स योर डिग्री, कि आपने एमबीबीएस किया हुआ है, एमबीबीएस एमडी किया हुआ है, बीएमएस किया हुआ है, कौन सी डिग्री आपके पास है। You must write the brand necessary, medically necessary, and dispense as written to the generic prescription medication. So this is a prescription. इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, RX लिख दिया, क्या टेलमिसार्टन दवाई है 40 मिलीग्राम आपने उसको देना है इंस्क्रिप्शन के अंदर। सिग्नेचर SIG सिग्नेचर में लिख दिया उन्होंने, टेक 1 बाय माउथ डेली इन द मॉर्निंग फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। सो एवरीथिंग इज क्लियर। दवाई लेनी कैसे है, एक गोली लेनी है, मॉर्निंग में लेनी है, और किस बीमारी के लिए लेनी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। रिफिल भी इसमें लिख दिया है 6 टाइम्स। अब एक दवाई है 6 टाइम्स रिफिल लिख करना है तो 6 दिन के लिए आपको वो दवाई दी जाएगी। इसके बाद आपको नई प्रिस्क्रिप्शन दोबारा डॉक्टर से लिखवा के लानी पड़ेगी। जेनरिक सब्सटीट्यूशन, ओके, कि आप जेनरिक दवाई इसका सब्सटीट्यूट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये आप इसमें ओके लिख दिया है तो इसका मतलब आप इसका सब्सटीट्यूट कोई भी दे सकते हैं। सिग्नेचर नीचे दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका डॉक्टर का लिख दिया है, कितना क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसके बाद उसके यहाँ पे इस एरिया में साइन हो जाएगी। पेशेंट की कंप्लीट डिटेल आ गई है। जैक रूडोल्फ, मार्क पॉल इज द पेशेंट, जैक रूडोल्फ इज द प्रिस्क्राइबर नेम, हु इज अ डॉक्टर, MD डॉक्टर। उसका एड्रेस आ गया, नेम ऑफ द पेशेंट आ गया, मार्क पॉल, ही इज अ मेल, एज 45 ईयर्स, वेट इज 75 किलोग्राम्स। उसका एड्रेस आ गया और डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आ गई। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन।